Good morning to all of students. Dear students, Vande Mataram. So dear students, today will be start chapter number 9, fundamental rights, fundamental duties and directive principle of state policy. Okay. Now listen and carefully. आज हमें चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत करना है. चैप्टर नंबर 9 करने में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके. नाउ लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. In the previous chapter, we have studied the Indian Constitution, preamble and important pillars as well as the specific characteristic. In this chapter, we will study about other important characteristic of Constitution, that is the fundamental rights, fundamental duties and the directive principle of state policy. Okay. Now listen. In the previous chapter, we have studied Indian Constitution. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, उनके प्रिम्बल्स और इम्पोर्टेंस जो पिलर्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देखे थे, और स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक थे उसके बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देखी थी. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके. तो हमें इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में हमें जानकारी देखनी. ओके. नाउ लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स देखेंगे. ओके. नाउ लिसन. ह्यूमन राइट आर दोज द राइट विच नॉट ओनली गिव अ पर्सन हिज हर बेसिक एग्जिस्टेंस बट also overall development in which society helps to construct the environment which enable him to her grow. Every democratic country the citizen are conferred with the basic rights. A person is not discriminated on the basis of caste can experience the basic rights. The protection of these rights are assured by the society and nation as well. The person by his birth one rights which is her basic rights which are known as human rights. Okay. Now listen. अब मैंने पैराग्राफ रीड किया, अभी हम लोग इसे डिटेल देखते. ओके. Human rights are those rights which not only give a person his her basic existence but also the overall development in which society helps to the construct an environment which enables him to her grow. Okay. Human rights. ठीक है. देखो, हर पर्सन को उसके डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से या फिर उसका जो प्रोग्रेस से कंटिन्यू चलने के लिए गवर्नमेंट की ओर से उन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उसे हम लोग ह्यूमन राइट्स के नाम से जान सकते हैं. ठीक है. यानी वो खुद का डेवलपमेंट कर सकता है, उसका वो डेवलपमेंट के साथ साथ उसके जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलते रहे, उसके लिए ह्यूमन राइट सबसे इंपॉर्टेंस माने जाते हैं. इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन आर कन्फर्ड विद द बेसिक राइट. इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब जितने सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन कंट्री में हर सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड किए गए. A person is not discriminated on the basis of caste can express on the basis of right. Protection of these rights as to the society of the nation as well. A person is not discriminated मतलब किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, चाहे पर्सन किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो उसको कंपलसरी राइट्स मिलना चाहिए, यानी उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है. The person by his birth one's right which are her basic rights which are known as the human rights. Okay. यानी उसके जो अधिकार है उसे हम लोग ह्यूमन राइट्स के नाम से जान सकते. ओके. नाउ नेक्स्ट. United Nations General Assembly has declared human rights on 20 December 1948. On 10th December is celebrated as a Human Rights Day. From the global announcement human rights, certain basic and important human rights are added in the Constitution of India and thereby these rights are protected in a dignified way. Thus those rights, human rights which are included by the Constitution of India are known as the fundamental rights. Okay. Now listen. United Nations General Assembly has declared human rights on 10th of December 1948. ओके. यानी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया गया था ह्यूमन राइट्स डे. ओके. 10 दिसंबर 1948 को एक मतलब जो अधिकार पत्र उसे डिसाइड किया गया और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया. ओके. 10 दिसंबर इन एवरी ईयर 10 दिसंबर हैज सेलिब्रेटेड ह्यूमन राइट्स डे. From the global announcement of human rights, certain basic of important human rights added in the Constitution India and thereby the rights of the protected in the dignified way. जो rights है human rights को protect करता है. In every year देखो हर साल हम लोग 10 दिसंबर को human right days के नाम से जान सकते हैं. Those the human rights are included by the Constitution of India known as the fundamental rights. जो human rights है उसको Constitution of India में इंक्लूड किया गया है, उसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के भी नाम से जान सकते. ओके. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक.
These human rights proclaim the human being is live to the dignified way for the existence of human being in the basic needs food, clothes, shelter, education and health should be received in a dignified and respectable way. Democratic country allows its citizen to enjoy equal rights to multifaceted on development. The state guarantees such a conducive environment wherein one has protection of fundamental rights and the identity of democratic systems. Okay, now listen, अब इसमें क्या कह रहे हैं? दिस ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम द ह्यूमन बीइंग इन लाइव एंड डिग्निफाइड वे। ओके, यानी ये जो है ये ह्यूमन राइट्स है, ये मानव अधिकारों की घोषणा और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द बेसिक नीड्स, ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स है, फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये बेसिक नीड्स है। शुड बी रिसीव एंड डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेबल वे, उसकी जो बेसिक नीड्स है कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए हर पर्सन को हमें ह्यूमन राइट्स दिया गया है। Democratic country allows in citizen to enjoy equal rights and multifaceted of development, सबको equal rights मिलना चाहिए। The state guarantees such as a conducive environment wherein one has protection of fundamental rights and true identity of democratic country। ठीक है, यानी उसके लिए जो fundamental rights प्रोवाइड किए गए ये उसकी एक आइडेंटिटी मानी जाती है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। ओके, नाउ लिसन एंड केयरफुली। The nation's stability, protection of citizen, freedom, the democracy are protected the fundamental rights। ओके, देखो हर कंट्री या फिर नेशन ऑफ, लिसन विद द नेशन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, नेशन में स्टेबिलिटी रहे, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, हर एक सिटीजन को प्रोटेक्शन मिले, उन्हें फ्रीडम मिले, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्शन देने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसके बारे में देखना है। नाउ लिसन, फर्स्ट राइट्स है राइट टू इक्वेलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट टू एक्सप्लेनेशंस, फोर्थ राइट टू फ्रीडम और रिलीजियस, फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड सिक्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, नाउ लिसन, राइट टू इक्वेलिटी, यानी इसमें हमें इक्वेलिटी के बारे में देखना है। इंडिया में जितने सारे रिलीजियस के पीपल्स बिलोंग करते हैं उनके अंदर इक्वेलिटी होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ऑल रिलीजियस के पीपल्स उनके अंदर इक्वेलिटी होनी चाहिए, ये हमें देखना है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, हर पर्सन को फ्रीडम है, वो इंडिया में कहीं पे भी रह सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेट का अदर स्टेट में जा सकता है। ठीक है, ये हमें राइट टू फ्रीडम में देखना है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, अगर किसी पर्सन का शोषण हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने राइट्स दिया है, वो अपने जो अगर उसको एक्सप्लोनेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो कुछ वर्क कर सकता है, वो हमें राइट टू एक्सप्लोनेशन में देखना है। राइट टू फ्रीडम रिलीजियस के बारे में देखना है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, हर पर्सन को एजुकेशन राइट्स है वो देखना है। लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमें देखना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें इतना टॉपिक देखना था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू देखेंगे। ओके, थैंक यू।